الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ذہنی آزمائش کا دوسرا سلسلہ ہے۔ آج ایک بار پھر دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ کل پہلا ہوا، ایک ٹیم حیدرآباد کی آگے بڑھ گئی، کچھ نمبروں سے واربرٹن پنجاب کی ٹیم کچھ پیچھے رہی ہے، جن کے پاس ایک موقع موجود ہے۔ مگر آج ہمارے ساتھ پنجاب کے ایک اور شہر گجرانوالہ سے اسلامی بھائی شامل ہوں گے، اور اسی طرح پنڈی بھٹیاں، یعنی آج دونوں ٹیمیں پنجاب سے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیاری کیسی ہے۔ الحمدللہ عز و جل سوال جواب تو ان سے ہوتے ہیں، مگر علم دین سیکھنے کا موقع ہم سب کو ملتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شروع سے آخر تک سلسلے میں شامل رہیں، ہو سکے تو سوال و جواب لکھ لیں، بلکہ ایک اور کام کر لیجئے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو اپنے گھر میں ہی دو ٹیمز بنا لیجئے۔ ایک گھر کے کچھ افراد جو ہے وہ گجرانوالہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ پنڈی بٹیا والوں کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ ایک مقابلے کی اور ایک انشاءاللہ یوں سمجھیے کہ دلچسپی کی فضا اور بڑھ جائے گی۔ ناظرین، ہمارے سلسلے میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ بھی ہمیں کالز کرتے رہیے، وقت مناسب پر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ وقت ہوا ہے اب دونوں ٹیموں کو بلانے کا۔ گجرانوالہ اور پنڈی بٹیا والوں سے گزارش ہے، تشریف لائیے۔ دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ان کا تعارف حاصل کریں، کل ایک مقابلہ ہوا جو کہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کا پہلا مقابلہ تھا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج پہلا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طویل سفر ہے ذہنی آزمائش کا۔ علم دی تو نور ہے، یقین نور ہے، جس کے سینے میں سجا سینہ وہی فل نور ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا کون ہے؟ حضرت سیدنا امام احمد کی کتاب المناقب میں ہے کہ جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ مومن کے دل میں اہل بیت سے پیار ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا سب کچھ اہل بیت پر قربان۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سوزے سرکار اے خدائے پاک تو کر دے عطا، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام، عشق سرور میں تڑپتا ہی رہوں مولا مدام۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبع مثانی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے۔ صحیح۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ غلط۔ ابو جہل کو حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا۔ صحیح۔ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ احد ہے۔ غلط۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ صحیح۔ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، حیدرآباد والوں نے پاسا پلٹ دیا ہے۔ اذکر اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ عز و جل۔ ہم نے دیکھا کہ کتنا زبردست مقابلہ ہوا، آخر تک دونوں ٹیمیں برابر برابر رہیں، اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک ٹیم آگے بڑھ گئی۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ گجرانوالہ یا پنڈی بھٹیاں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ میری دائیں طرف گجرانوالہ کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ اپنا نام بتائیں گے اور بتائیں گے آپ کیا کرتے ہیں۔ میرا نام محمد مجتبیٰ بن محمد الیاس حسینی ہے، اور میں جامعۃ المدینہ تارانوالہ گلہ میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے ساتھ خطیب کے اپنا خطیب بھی ہوں۔ ماشاءاللہ، چلے جناب، خطیب صاحب بھی ہیں۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد اسد مصطفی، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درجہ ثانویہ میں۔ ماشاءاللہ، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے ادارے سے میں نے دیکھا ہے گجرانوالہ کی ٹیم میں ایک نہ ایک اسلامی بھائی شامل ہوتے ہیں، پھر امید ہے کہ ادارت المصطفیٰ کے طلباء اساتذہ بھی پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ دیکھ۔ ماشاءاللہ، چلے جناب اگلے اسلامی بھائی۔ میرا نام علی رضا اتاری ہے، میرے والد محترم کا نام ریاست علی ہے۔ میں بیسیکلی ضلع سیالکوٹ کے گاؤں سترا سندواں سے ہوں، اور میرا سلیکشن گجرانوالہ سے ہوا۔ چلیں جناب، گجرانوالہ والے یہاں سلیکٹ ہو کر کیسے پہنچے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آیا رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ لایا، ذہنی آزمائش آیا۔ آج یہاں سے
टीम सेलेक्ट होगी। कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। अब देखते हैं कौन खुश नसीब इस्लामी भाई गुजरांवाला की टीम का हिस्सा बनते हैं। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। क्या नमाज की अजान के अलावा और अजान का भी जवाब दिया जाएगा؟ जी हाँ, अजान नमाज के अलावा और भी अजानों का जवाब दिया जाएगा। जैसे कि बच्चा पैदा होते वक्त उसके कान में अजान दी जाती है, उसका भी जवाब दिया जाएगा। माशाअल्लाह। कि खुसरुओं में पड़ी है पुकार हम भी हैं। किस शहनशाह वाला का सदका बढ़ता है कि खुसरों में पड़ी है पुकार के हम भी हैं। सजदा सहव कब किया जाता है? सजदा साहब जब नमाज में वाजिबात में से कोई भूल जाए या फ़राइज़ व वाजिबात में से कोई ताख़ीर हो जाए, उस वक्त सजदा साहब किया जाएगा। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब गुजरांवाला वालों को मरहबा कहते हैं। अब मेरी बाईं तरफ पिंडी बटिया के इस्लामी भाई हैं। बताइए क्या नाम है और क्या मसरूफियात हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद माहर है और मेरे वालिद साहब का नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना फैसलाबाद का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तलहा जाहिद है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाफिज़ जाहिद महमूद है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना पिंडी भटिया में दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिशाइल बिसाम अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम अज़हर हुसैन है। मैं बेसिकली चकवाल सिटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मरकज़ी जामिअतुल मदीना तलागंग 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ अपने जामिअतुल मदीना के तहत ऑल स्टैक वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर कोर्स भी कर रहा हूँ। क्या बात है जनाब। ये इस्लामी भाई जो कि पिंडी बटिया की टीम से आए हैं, कैसे सेलेक्ट हुए, इनके ऑडिशन के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया, आज़माइश आ गया, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, दिल में खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है पंजाब के शहर पिंडी बटिया में। इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, इल्म का दरिया खूब बहाया, ज़हनी आज़माइश आया, आज़माइश आया। वसीलुल मलाइका किनका लक़ब था? वसीलुल मलाइका हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब था। रखती हैं वल्लाह वो पाकी, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गोहर एड़ियाँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का इस्म आज़म कुरान पाक की किन 2 आयतों में है? हज़रत अस्मा बिनते यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक का इस्म आज़म कुरान मजीद की इन 2 आयात व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम और दूसरी सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इनके अंदर है। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा कहते हैं पिंडी भटिया वालों को भी। अब वक्त हुआ है नाजरीन, कल आपसे एक सवाल किया गया था जिसकी क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी रह गई थी। आइए कंप्यूटर के जरिए जानते हैं कि आज की जो कल हुआ था सवाल, उसकी क्विज एप्लीकेशन का सवाल जवाब और खुश नसीब आशिकान रसूल की आईडीज। जी ये सवाल ये था, वो कौन सी सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई? तीसरा ऑप्शन सूरह फातिहा दुरुस्त था। अब कई लोगों ने जवाब दिया होगा। अब लकी ड्रॉ होगा कंप्यूटर के जरिए और वो बताएंगे कि किन खुश नसीबों को तहाइफ जाएंगे। जी अपने मोबाइल फोन से जिन्होंने जवाब दिया वो ये 5 आईडीज को तोहफा जाएगा। और ऊपर जो फोन नंबर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले के आगे फोन नंबर भी लिख लीजिएगा ताकि लोगों को आसानी रहे। ये 0370 वाला फोन नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर
آپ اپنی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ بھیج دیں, پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا, آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. کل ایک اور سوال ہم نے کیا تھا جس کا ناظرین نے جواب دینا تھا SMS کے ذریعے. وقت ہوا ہے اس سوال کا جواب اور اس کی قرآن اندازی کا. جی, سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہفتے میں کس دن مسجد قباء شریف تشریف لے جاتے تھے؟ تو درست جواب ہے ہفتے کے دن. محمد ابراہیم اتاری, ماڈل ٹاؤن واکنڈ, بنت اسلم اورنگی ٹاؤن کراچی, بنت غلام حسین پتھورو سندھ, محمد اعظم بن محمد افضل بصیر پور, بنت عبدالرزاق عارف والا, رحمت اللہ بن داؤد خان عمر کوٹ, محمد اشفاق اتاری ٹنڈو آدم, بنت جاوید اتاریہ مامو کانجن, انعام الحق اتاری ڈیرہ اللہ یار بلوچستان, بنت عبد المجید اتاریہ کراچی, محمد مزمل ملتان, محمود علی خان گڑھ. آج جس خوش نصیب کا نام آیا ہے بنت اسلم اورنگی ٹاؤن, تو یہ اپنے محرم کو ہمارے اسٹوڈیو میں بھیج دیں, انشاءاللہ ان کا تحفہ انہیں دے دیا جائے. ماشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ناظرین آپ سے آج کی کوئز اپلیکیشن کا سوال کرنے کا. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کے نام سے کوئز اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. نہ صرف لائیو سوال کی سہولت ہوگی بلکہ آپ گھر بیٹھے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا خود اکیلے بھی ذہنی آزمائش کے گویا مقابلے میں حصہ لے سکیں گے. آپ سے وہ کوئز سوال کرے گی, آپ جواب دیں گے, آپ کو آپشن ملتے جائیں گے اور گیم کی صورت میں, پوائنٹس کی صورت میں آپ علم دین بھی سیکھتے چلے جائیں گے. یہ اپلیکیشن iOS پر بھی موجود ہے, ایپ سٹور پر بھی موجود ہے, پلے سٹور پر بھی موجود ہے. جائیے اور ڈاؤن لوڈ کیجئے. آج کا سوال, سب سے پہلے کھیتی باڑی کس نے کی؟ سب سے پہلے کھیتی باڑی کس نے کی؟ 4 آپشن آپ کو اسکرین پر ملیں گے. موبائل اپلیکیشن کی حضرت آدم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اور اس کے بعد ان چاروں میں سے کوئی ایک آپشن ٹھیک ہوگا, جواب دیجئے اور اس کے بعد اپنی آئی ڈی بھی اپنے پاس سیو رکھیں. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو جواب دیں گے. ایک اور سوال جس کا سوال کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, اس کھجور کے تنے کا آپ نے نام بتانا ہے. ہے تو بڑا انٹرسٹڈ سوال, لیکن کہاں سے ملے گا جواب؟ یہ جواب آپ کو جنوری 2018 کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے بھی مل جائے گا. چلے جناب, یہ بھی ہو گیا. اب باری ہے آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. علم نور ہے, عشق کے بول, سب سے آخری نبی, 1500واں جشن ولادت, فقہ حنفی اور اس کے دلائل, قرآنی معلومات, سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب پہلا سوال کریں گے گجرانوالہ والوں سے. ہر سوال کے جواب پر 2 نمبر ملیں گے اور 25 سیکنڈ ہوں گے مشورہ کرنے کے لیے. یاد رہے کہ 25 سیکنڈ کے بعد جواب دیں گے تو جواب درست نہیں مانا جائے گا. اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے گجرانوالہ والوں سے, ہر صاحب شان کام کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر ذی شان کام, ہر اہم کام وہ بسم اللہ شریف کے بغیر پڑھا جائے تو وہ ناقص اور نامکمل ہے, وہ ابتر ہے, برکت سے خالی ہے. وہ برکت سے خالی رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کہنا یہ چاہیے کہ ہر جو ذیشان کام ہے, ہر وہ کام جو اہم ہے, اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ کامل بھی ہو جائے گا, پورا بھی ہو جائے گا, برکت بھی ملے گی. اللہ کے نام کے بغیر ہم اپنے کام بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر خسارہ بھی اٹھاتے ہیں. پنڈی بٹیا والوں سے سوال ہے, کیا انسان فرشتوں سے افضل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام خاص فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت عزرائیل, حضرت اسرافیل, مقرب فرشتے حاملین عرش ان سے افضل ہیں, اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں, اور عام انسان یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. یاد رہے یہاں پر عام انسان سے مراد صالحین ہیں, نہ کہ فاسقین. کیا بات ہے, یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی صالحین ہیں, نیک لوگ ہیں, تو وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں, پھر کیوں نہ ہم اپنی خود اہمیت کو محسوس کریں. جواب درست دے دیا ہے. اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ نیکی و بھلائی کرنے والے کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟
क्या बात है अहले बैत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना इब्न सईद से मरवी है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई नेकी की और वो दुनिया में उसका बदला ना दे सका, तो कल बरोज़ क़यामत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसको बदला दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अहले बैत के साथ अच्छा बर्ताव करने वालों को मुबारक हो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरे अहले बैत में से किसी के साथ कोई नेकी की और वो दुनिया में उसका बदला न दे सका, तो कयामत के दिन मैं उसकी जानिब से उस नेकी का बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अहले बैत की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मुझे वो शजरे का शेर याद आ रहा है कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह दावत से कौन सी उम्मत मुराद है? पिंडी वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत दावत से वो तमाम मखलूक मुराद है जिसकी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी बनाकर भेजे गए। इसमें हर वो मखलूक शामिल है जिसकी तरफ रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उम्मत इजाबत से कौन सी उम्मत मुराद है? उम्मत इजाबत से मुराद हर वो शख्स जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, वो उम्मत इजाबत में। जनाब, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए वो उम्मत इजाबत में शामिल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लफ्ज अल्लाह के मुताल्लिक अहले लुगत क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मुहियुद्दीन शेखज़ादा रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह इसमें जलालत ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कसरत इस्तेमाल की वजह से अलम बन गया है। और अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो है वो सिफ़ात के सीगों पर हैं, ताकि इंसान जो है उन नामों के माना को समझ कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर वसीला पेश कर सके। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीन सवाल हुए, कोई गलती नहीं की है, मगर अब बारी सवाल वो हैं जो इनके सिलेबस में नहीं हैं। अब देखना यह है कि उसका जवाब कैसे देते हैं। मगर उनके लिए आसानी यह है कि कुछ 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनमें से जो टॉपिक चाहें पसंद फरमाएं। बताइए जनाब। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम, या फिर जनरल नॉलेज? कुरान पाक। जनाब, कुरान पाक से पहला सवाल इनसे किया जाएगा। कुरान पाक के हवाले से सवाल किया जाए। सूरह जिन कुरान पाक के किस पारे में है? सूरह जिन कुरान पाक के 29वें पारे में है। 29वें पारे में है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हालांकि इनके पास एक ऑप्शन था कि ये हमारे हाजरीन में से किसी से पूछ लेते, मगर खुद ही लगता है हाफिज कुरान है। जवाब दे दिया। जनाब, पिंडी वालों की बारी है। टॉपिक दिखाए जाएं। कुरान पाक। कुरान पाक, क्या बात है। कुरान पाक में कितनी औरतों का नाम के साथ तस्करा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में हज़रत मरियम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हीं का सिर्फ नाम के साथ जिक्र हुआ। एक ही खातून का जिक्र हुआ है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिन्त इमरान। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है एक और सवाल की। गुजरांवाला वाले, अब कुरान पाक का टॉपिक आप दोनों ने सेलेक्ट कर लिया, अब कोई और टॉपिक सेलेक्ट करना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक सवाल है, इसमें ऑप्शन भी दिए जाएंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा किस सिने हिजरी में दिया? 3 ऑप्शन है, 1 हिजरी, 5 हिजरी या 3 हिजरी। पहला खुतबा जुमा 1, 3 या 5 हिजरी, जल्दी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला खुतबा जुमा 1 सन हिजरी को दिया। आपको पता है ग़ज़वा-ए बदर 2 हिजरी में हुआ था और हमारे पास 3 हिजरी का ऑप्शन भी था, 5 हिजरी का ऑप्शन भी था। पहला ही साल था नबी पाक मदीने से, मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे थे और मस्जिद कुबा की तामीर भी की, लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, पहली हिजरी में ही पहला खुतबा जुमा दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, ये भी ठीक हो गया। अब बारी पिंडी बटिया वालों की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत से मुताल्लिक सवाल होगा। अशराए मुबश्शरा के वो कौन से सहाबी हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीजाद भाई भी हैं? हजरत जाफर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। गौर करके जवाब देना है। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने कहा हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर, जवाब एक ही बार देंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर आपने कहा। हमारे पास एक ऑप्शन हजरत जाफर का भी था, हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम भी था और सही जवाब था हजरत जुबैर बिन अल-अव्वाम। आपसे गलती हो गई है, तो बेटा मशवरा करके एक ही बार आप जवाब देंगे ताकि इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे मुकाबला बाकी है। यहाँ सवालात पूरे हो गए हैं इस सेगमेंट के। अब आतिफ भाई आप मौजूद हैं हाज़रीन के लिए, बताइए क्या सवाल करेंगे और क्या तोहफा देंगे इंशाल्लाह। आज ज़हनी आजमाइश की खुसूसियत है तबर्रुकात, तो इंशाल्लाह सौगात मदीना इंशाल्लाह तोहफे में देंगे जो पहले सवाल का जवाब देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल है वो कौन से 2 शहर हैं जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? वो कौन से 2 शहर हैं जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? बच्चों ने भी हाथ खड़े किए हैं। जी माशाल्लाह, बच्चे भी हैं। स्कूल पर मक्का मदीना। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है। और ये सौगात मदीना इनके वालिद साहब की मिल्क है। सुभान अल्लाह। ये कल भी तोहफा मिला था ना इनको, ये वही बच्चा है जिसका कुरान के भाई हैं। भाई क्या बात है, सारे भाई क्या पढ़ के आते हो भाई? वो कितना खुश कितना है, देखो उसको दिखाई दे रहा छोटे को, तो कल भी इसकी खुशी संभल नहीं रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे। चलें, अगला सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जो 40 कदम जनाजा लेकर चले उसे क्या अजर मिलता है? जो 40 कदम जनाजा लेकर चले उसे क्या अजर मिलता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुल्लाह तारी अर्ज कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह, कहाँ से आए असद भाई? बल्दिया टाउन से। माशाल्लाह। हदीस पाक के मुताबिक मफहूम है हदीस पाक का कि जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले तो उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इन्हें गिलाफ काबा शरीफ के धागे इंशाल्लाह पेश करें। क्या बात, कितनी प्यारी फजीलत है कि लोग नॉर्मली जनाजे में जाते हैं कांधा नहीं देते, मगर 40 कदम अगर आप चल जाएं 40 सेकंड लगेंगे, कितनी देर लग जाएगी? 40 कबीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। यानी ये तो लालच होनी चाहिए कि यार किसी मुसलमान का जनाजा मिले और मैं उसके कांधा दे दूं। हाँ, आप पाकिस्तान में एक एहतियात जरूर करनी चाहिए कि कांधा देते हुए बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि अपने जेब का भी ख्याल रखें, लेकिन चलें जेब खाली करके चले जाएं, लेकिन कांधा जरूर दें और इसकी बरकतें हासिल करें। आइए देखते हैं जनाब हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 8 नंबर है पिंडी बटिया के, 10 नंबर है गुजरांवाला वालों के। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
حافظ محمد رمضان اطاری اسپین کے کیپٹل میڈرڈ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو ذہنی آزمائش کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پروگرام بہت ہی پیارا سیٹ آپ نے اس مرتبہ سجایا بالخصوص جیسے کل آپ نے اس کا آغاز کیا ماشاءاللہ مزے کو مزہ آ گیا بالخصوص پھر آپ نے جو اس کا کلام اس مرتبہ ریکارڈ کروایا اس کی جو شوٹنگ ہوئی یہ بھی بہت ہی پیاری ہے بہت زبردست ہے جو سیگمنٹ آپ لے کر آئے ایک سے بھر کر ایک ہے قرآنی معلومات اور اسی طرح فقہ حنفی کے متعلق اور 1500واں جشن ولادت کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی پیارے سیگمنٹ ہے علم دین سیکھنے کا سنہری موقع ہے اس پروگرام کے ذریعے علم دین میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے آپ کی صحت میں آپ کی عمر میں تقوی میں مزید برکتیں عطا فرمائے مدینہ پاک کی باادب حاضری اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صدقے ہم سب کو نصیب فرمائے دعاؤں کی التجا ہے جزاک اللہ خیر بہت شکریہ آپ اتنی پیاری دعائیں دینے کا بہت شکریہ ماشاءاللہ اسپین سے آپ نے ہمیں کال کیا اگلی کال دیجیے گا میرا نام ابو بکر اطاری اور میں مدرسہ المدینہ بہار مدینہ تلوارہ ملا میں پڑھتا ہوں میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے ہم اور ہمارے گھر والے ذہنی آزمائش بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ذہنی آزمائش سے بہت ڈھیر علم حاصل ہوتا ہے اور ہماری عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارا مدینے جانے کے اسباب بنیں آمین 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 اللہ آپ کو اور ہمیں ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے ناظرین چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول عشق کے بول سیگمنٹ میں 5 اشعار دونوں ٹیموں سے ہم نے سننے ہیں باری ہے پہلے گجرانوالہ والوں کی پہلا شعر سنیں گے رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو رشک عطار کو ان ذروں پر آتا ہے جو ان کے نالین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں ان کے نالین کے تلووں سے لگا مقدر ہیں مدینے کے کبوتر بے شک مقدر ہیں مدینے کے کبوتر بے شک گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں جواب درست دے دیا ہے قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم قدموں سے لگا لو تم دیوانہ بنا لو تم بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں جواب درست دے دیا ہے قسمت میری چمکا دو تربت میری بنوا دو قسمت میری چمکا دو تربت میری بنوا دو بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں جواب درست دے دیا ہے قسمت میری چمکا بہت سارے لوگ جو وہ تربت نہیں سمجھتے تربت کے معنی ہے قبر کے یا رسول اللہ ایسی قسمت چمکا دیجئے کہ مدینے بھی بلائیے پھر اپنے قدموں میں رکھ دیجئے اور وہی ہماری قبر بھی بن جائے قسمت میری چمکا دو تربت میری بنوا دو قسمت میری چمکا مرشد کھڑا رہوں گا کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا حضور مرشد کھڑا رہوں گا کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا
निगाह लुत्फ व करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। निगाहे लुत्फो करम उठेगी तो झुक के मेरा सलाम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया। खुदा की मर्जी है उनकी मर्जी, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी, उन्हीं की मर्जी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। वाह भाई वाह। जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, जो चाहते हो कि हो सर्द आतिशे दोज़ख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। वाह भाई वाह। दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा। मेरे गुनाहों के दफ्तर जो खुले पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फे आम कर देना। हाय हाय, क्या प्यारी इल्तिजा है कि जब गुनाह के दफ्तर खुले, हमारे नामा अमाल खुले, तो हुजूर उस दिन आप निगाह रहमत फरमाकर शफाअत का इंतजाम कर लीजिएगा, गुनाह मुआफ करवा दीजिएगा। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लुत्फ आम कर लेना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे आका, मेरे गुनाहों के दफ्तर खुले जो पेशे खुदा, हुजूर उस घड़ी तुम लो सुभान अल्लाह। जनाब, अब बारी गुजरांवाला वालों की है। आपको एक शेर दिखाया जाएगा और उसकी 3 लाइनें होंगी। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपने सही जवाब देना है। एक लफ्ज भी आगे पीछे हुआ तो आपकी गलती मानी जाएगी। दिखाइए जनाब, शेर कौन सा है? उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। अब 3 इसके ऑप्शंस हैं। जिस तरफ चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तीन ऑप्शन आ गए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, जलते हंसा दिए हैं, रोते बुझा दिए हैं। चले जनाब। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। को आगे बढ़ाते हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। देखिए कौन सुनाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ुहैब अत्तारी बिन नदीम अहमद, गुजरात फ़िज़ान मदीना, 12 माह से हाजिर हूँ हुज़ूर। अरे वाह माशाअल्लाह, मरहबा।
जी फिर दोबारा अल्लाह शेर क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? ये माशाल्लाह मदनी काफिले में हैं तो इनको सूट पीस। अरे वाह भाई वाह, तोहफे में माशाल्लाह, पेश क्या बात है, सुभान अल्लाह। चलें एक शेर और सुनाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। जी नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद रज़ा। जी कहाँ से आए हैं अहमद रज़ा? कराची PIB कॉलोनी। अच्छा वाह माशाल्लाह, जी फरमाएं। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब अब चलेंगे एक कॉल लेते हैं, सिलसिले में फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। गुलाम रियासत तारीख करदू बल्तिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह करीम भाई साहब, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, हमें सारा साल ही इसका इंतजार रहता है। अल्लाह पाक हमें और आपको बरकत नसीब फरमाए, आमीन आमीन। क्या बात है, स्कर्दू की ठंडी ठंडी वादियों से आपने हमें कॉल किया, जज़ाकल्लाह। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है पिंडी भटिया वालों के, 20 नंबर है गुजरांवाला वालों के, और अब बारी है खत्म नबूवत अलैहिस्सलाम के अकीदे को मजीद जानने और उसको मजीद मजबूत करने का एक बड़ा प्यारा मौका मिलता है, जिस सिलसिले में, जिस सेगमेंट में, जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। आइए मिलकर बहुत ही खूबसूरत नारे जो अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए, पहले वो मिलकर लगाते हैं। जो घरों में बैठे हैं आपने भी लगाना है और आपके बच्चों ने भी लगाना है, ताकि ये बात हमारी रगों में उतर जाए, हमारे दिल में बैठ जाए। क्या? मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा औलिया का भी सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, अकीदा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी। आपके घर किसना आएगा नबी नया, आपके घर किसना आएगा नबी नया, आपके हर किसना आएगा नबी नया, आपके हर किसना आएगा नबी नया। वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, वल्लाह हलीमा है मेरा ऐ आखिरी नबी, मीठे मदीने में बुला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब अब बारी है इस सेगमेंट के पहले सवाल की। कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस हैसियत से तशरीफ लाएंगे? हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो आपके आने से ख़त्म नबूवत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़ातमुन नबीयीन के माना ये हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने के बाद किसी और को नबूवत ना मिले। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले के नबी हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उम्मती बन के कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, ना कि नबी बनकर। जनाब अब हैसियत नबी अपनी शरीयत की तबलीग नहीं फरमाएंगे, बल्कि अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ही अमल कराएंगे। गोया आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने की हैसियत से आएंगे और आपके तशरीफ लाने से अकीदाए खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
حدیث لا نبی یا بعدی سے اگلوں پچھلوں نے کیا معنی سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث لا نبی یا بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں سے تمام امت مرحومہ نے سلفن و خلفن یہی معنی مراد لیے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا تخصیص تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے آخری ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا محال ہے. آپ جواب بالکل درست دے دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاتم النبیین ہونا کس مثال سے سمجھایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک حسین و جمیل عمارت بنائی اور اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کیوں نہ اس نے کونے میں ایک اینٹ رکھ دی. فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے کہ اس حدیث پاک کی ذرا مزید شرح بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کیا ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نبوت کو ایک عالی شان محل سے تشبیہ دی. گویا کہ نبوت ایک نورانی محل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی نورانی اینٹیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری اینٹ ہیں جس نے سب سے آخر میں لگنا ہے, اور وہ آخری اینٹ لگ چکی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے, نبوت کا آخری پھول کھل چکا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. جس طرح اس اینٹ کے لگنے سے وہ عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے, اس کے اندر مزید اینٹ لگنے کی گنجائش نہیں, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا محال ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ وہ اینٹ ہے جو پہلے سے اس محل کے اندر لگی ہوئی ہے. اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ عشائل بسام اتاری. عشائل بسام, بڑا مشکل نام ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ عشائل کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں, ایک لمبی داڑھی والا بزرگ اور دوسرا خدا کا راز. کیا بات ہے. اور بسام کے معنی بہت زیادہ ہنسنے اور ہنسانے والا. کیا بات ہے, بڑا یونیک نام ہے. آپ نے بتایا تھا آپ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ ویسے چکوال شہر ہے اور جامعۃ المدینہ تلگنگ میں پڑھتا ہوں. اللہ گنگ میں پڑھتے ہیں. چلے جناب, یہ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, مگر ایک کال سلسلے میں پہلے شامل کرتے ہیں. محمد اسنین اتاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا بہت ہی مقبول عام ذہنی آزمائش کا پروگرام ماشاءاللہ ایک بار پھر اس کے آمد ہو چکی ہے. مرحبا صد مرحبا, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ الکریم. اس بار تو ماشاء اللہ اتنے اچھے سیگمنٹ ہیں, دل ماشاء اللہ خوش ہو گیا. عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے, اتنے پیارے سیگمنٹ آپ لاتے ہیں, کیا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے یا اس کے پیچھے پوری ٹیم ورک ہوتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. میرے لیے, میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کے سلسلہ اور مدنی چینل کہاں دیکھا جاتا ہے. اسپین سے کال آئی ہمیں, اسکردو سے کال آئی ہے, عراق سے کال آئی ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. بالکل ایسا یہ سیگمنٹس کی تیاری جو ہے یہ ہماری ٹیم کرتی ہے, اور میرا تو نہ ہونے کے برابر کردار ہوتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ پورا سال اس میں تیاری کرتے ہیں اور پھر ہم سے مشورہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں سلیکٹ کرتا ہوں, لیکن بہت سارے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیگمنٹ کا مشورہ کرتے ہیں تو بعض اوقات 100 سیگمنٹ وہ لکھ کر لاتے ہیں, اور ان میں سے پھر ہم سلیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی شروع میں یہ کریں گے, بعد میں یہ کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر سلیکٹ نہیں ہوتے. تو الحمدللہ مسلسل تیاری رہتی ہے, اور بلکہ ہم تو آپ کو بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ بھی سلسلے کے دوران اگر سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پر یا اس موضوع سے متعلق کوئی سیگمنٹ ہو تو آپ ہمیں مشورے دیں. ہو سکتا ہے آپ کا مشورہ قبول ہو جائے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. آئیے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 22 نمبر ہیں پنڈی بھٹیاں والوں کے, 24 نمبر ہیں گجرانوالا والوں کے. اب باری ہے اگلا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت.
जनाब इस सेगमेंट की तैयारी इस तरह हुई है कि ये 15 बॉक्स हैं 1500 की निस्बत से, और इन 15 बॉक्स में 15 कैटेगरीज हैं। दोनों टीमों की तरफ से एक इस्लामी भाई आएंगे, मशवरा किसी से नहीं करेंगे, कोई भी बॉक्स खोलेंगे, जो टॉपिक होगा उसके मुतालिक 15 चीजों के नाम बताएंगे। 7 से ज्यादा बता देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और पूरे 15 बता देंगे तो इंशाल्लाह 2 नंबर मिलेंगे, और 1 मिनट का टाइम होगा इनके पास। जी गुजरांवाला की तरफ से आ जाएं, कौन से इस्लामी भाई आ रहे हैं? जी जनाब, आपके लिए मैं माइक का इंतजाम भी कर लूं। बॉक्स खोलिए, कौन सा बॉक्स खोल रहे हैं? 11वीं की निस्बत से 11 नंबर खोल रहे हैं। अच्छा जनाब, अंदर क्या है बताइए? 15 सहाबियात के नाम। 15 सहाबियात के नाम बताने हैं आपने, मुझे ये दे दीजिए, आप इजी हो जाए। जनाब आपका वक्त शुरू होता है अब। हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत सैयदना जुवैरिया, हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना उम्मे रुक़ैया, हज़रत सैयदना उम्मे ऐमन, हज़रत सैयदना उमैमा, हज़रत सैयदना उम्मे रुमान, हज़रत सैयदना ज़ैनब, हज़रत सैयदना फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत सैयदना फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत सैयदना उम्मे दरदा, हज़रत सैयदना उम्मे साद, हज़रत सैयदना उम्मे कलसूम, हज़रत सैयदना रुक़ैया, हज़रत सैयदना जुवैरिया। रुक़ैया और जुवैरिया तो हो चुका था, लेकिन 14 हुए हैं, एक बाकी अभी टाइम है, और कोई नाम ले लें आप तो 40 सेकंड में सारे कर दिए। एक दे देंगे तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। हज़रत सैयदना उम्मे दरदा। जी ठीक है जनाब, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, अभी भी टाइम है आपके पास, 15 पूरे कर लें। माशाल्लाह 14 आपने दे दिए नाम। हज़रत सैयदना कलसूम बिन हदम। चले जनाब, आपके पास जितने नाम थे आपने बता दिए, लेकिन आपके 14 नाम हमारी टीम ने ओके किए, कुछ आपने रिपीट किए हैं, तो फिर क्या किया जाए इनको? चले जनाब, 2 नंबर दिए जा रहे हैं, जवाब दुरुस्त माना जा रहा है माशाल्लाह। चले जनाब, आ जाए जनाब। चले अब आपकी बारी है, पिंडी बटिया के इस्लामी पे तशरीफ लाएं। जी कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 7 नंबर। क्या है इसमें? आप हाफिज हैं? चलें, हाफिज साहब को 15 पारे आ गए हैं, तो अब चलें जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल ला तनालुल बिर्रा वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ाल अल मलअ वअलमू यअतदिरून वमा लिया अम्मा तबारकल्लज़ी अम्मन खलक़ा। तो पूरे हो गए मेरा ख्याल। वमा मिन दाब्बा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले जनाब, अब कौन आ रहे हैं गुजरांवाला की तरफ से? अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे। 2 नंबर ले लिए भाई, 15 नाम बता देते हैं, क्या बात है। कौन सा नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? पंजतन पाक की निस्बत से 5 नंबर खोला गया जनाब। क्या है इसमें? मदीना पाक की 15 ज़ियारात। चलें, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, ये मुझे दे दीजिए। मदीना पाक की 15 ज़ियारात के नाम बताने इनको, वक्त शुरू होता है अब। गुंबद खजरा, जन्नतुल बकी, मस्जिद जुमा, मकान इबादत, मकान उतबान बिन मालिक, मकान जाबिर बिन अब्दुल्ला, मकान कलसूम बिन हदम, मकान साद बिन मालिक, मकान बेर गर्स बेर सलमान, सैयदना मकान फातिमा बिनत हुसैन, मस्जिद। आराम से, अभी आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, अभी 10 कर लिए हैं आपने, बहुत सारी मस्जिदें बाकी हैं। मस्जिद क़िबलतैन। इजी हो जाए, अभी भी बहुत टाइम है, 1 मिनट ज्यादा दे दिया लगता है। मकान फातिमा बिनत हुसैन वो हो गया, ख़ार सजदा। चलें ठीक है, कितने हो गए भाई? 12 हो गए हैं। चले जल्दी करें, अभी भी 2 बाकी हैं, 3 बाकी हैं। 12 इमाम। 12 पे हम आपको 2 नंबर नहीं दे सकेंगे जनाब, आपको एक नंबर पेश किया जाएगा। अपनी जगह तशरीफ रखें। माशाल्लाह मस्जिद कुबा आप शायद नहीं बता सके, और भी बहुत सारी ज़ियारतें थी। चले जनाब, पिंडी बटिया वालों को भेजिए। जी 3 नंबर क्या है इसके अंदर? मदीना पाक के 15 कुओं के नाम। ओए होए होए, ये तो और मुश्किल आ गया। मदीने पाक के 15 कुओं के नाम।
क्या बात है। चलिए जनाब, वक्त शुरू होता है अब। बेरे फातिमा बिनते हुसैन, बेरे सुलेमान फारसी, बेरे अबू अयूब अंसारी, बेरे हा, बेरे रोहा, बेरे बुदाआ, बेरे बुस्सा, बेरे सुकिया, बेरे शिफा, बेरे हजीम, बेरे गर्स, बेरे अज़, बेरे अरीसा, बेरे अरीस, बेरे यसीरा, और 15 पूरे हो चुके। 14 हुए, 15 हुए, 14 हुए हैं। एक और बता दें अगर है कोई कुआं तो। वैसे तो आपने 2 नंबर तक पहुंच गए। बेरे उर्वा और बेरे रोहा। चलें जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो ये सब आपके पास भी कुछ कुओं के पानी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तकरीबन 14 मुबारक पानियों का मजमू तो था पिछली साल। जी जी। इस साल कुछ वहाँ पर मदीना शरीफ में कुछ कुएं माशाल्लाह दोबारा ऑन किए गए, तो उनका पानी भी हमने शामिल किया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्या बात है। तो अब कितने तबरुकात हो गई है? तकरीबन ये 17 कुओं का पानी है, और इसमें मक्का शरीफ का बारिश का पानी भी है, मदीने पाक के बारिश का पानी, अमीर सुन्नत ने जो मदीने में पानी पे दम किया था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल है। गुस्ल गुंबद खतरा का पानी भी शामिल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देंगे किसको भाई? अब तो कईयों को, किस किस को चाहिए? सबको चाहिए भाई। इसका तरीकाकार क्या होगा? बस जवाब देते रहे तो मौके पे महल देते रहे। मेरा ख्याल है इस इस्लामी भाई को तो दे दें यार, माशाल्लाह इतने प्यारे इन्होंने 15 कुएं बताए माशाल्लाह, इनको तोहफे में दे दें। सैयद साहब के मुबारक हाथों से लें इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए जनाब नाजरीन, कुछ करीब आए हैं पिंडी भटियां वाले। अब देखते हैं मुकाबले का स्कोर बोर्ड, मगर एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम जुनेद अत्तारी है, मैं रहीम यार खान तो गाल करेंदा पिया। हाजी अब्दुल हबीब भाई ताकू बहुत बहुत मुबारक थी ज़हनी आजमाइश दी, और तमाम भाइयों को भी ज़हनी आजमाइश दी मुबारक थी वे। मैं ज़हनी आजमाइश दी मुबारक थी वे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सराइकी ज़बान में कॉल की। बड़ी मीठी ज़बान है माशाल्लाह। अब जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 26 नंबर है पिंडी भटियां, 27 नंबर है गुजरावाला वालों के। बहुत ही खूबसूरत वेरी यूनिक सेगमेंट, नाम है फिके हनफी और उसके दलाइल। जनाब सवाल करेंगे गुजरावाला वालों से, कब्र पक्की कर सकते हैं या नहीं? इससे मुताल्लिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कब्र को पुख्ता करना जायज़ नहीं है। इस पर आप दलील इरशाद फरमाते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र को पुख्ता करने से मना फरमाया, और कब्र से मुराद वो हिस्सा है जो जिसमें मय्यत को अंदर लिटाया जाता है। अलबत्ता जो कब्र का ऊपर वाला हिस्सा है उसको पक्का कर सकते हैं। अगर अंदर वाला हिस्सा भी बार बार पानी के आने से वो गिर जाती है पानी से, तो फिर उसको पुख्ता कर सकते हैं। जनाब जिसमें कब्र को पक्का किया जा सकता है उसमें बात सूरतें ऐसी हैं, मसलन ज़मीन कच्ची है कि आए दिन कब्र बैठ जाती है तो आप पक्का करने में हर्ज नहीं। अलबत्ता दलील ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसमें नबी पाक ने कब्र को पक्की करने से मना फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बिला उज़र नमाज को छोड़ने वाला काफिर है या नहीं? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जानबूझकर बिला उज़र नमाज छोड़ता है इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक वो काफिर नहीं होता। इसकी दलील सुन्ने अबू दाऊद शरीफ की सही दर्जे की हदीस मुबारका है। हज़रत अब्बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं, जो उनके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, उन्हें वक्त पर अदा करे, इत्मीनान के साथ रुकू करे और नमाज़ों के अंदर खुशू व खुज़ू इख्तियार करे, तो अल्लाह तबारक व तआला का उसके साथ वादा है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। और जो इस तरह ना करे तो अल्लाह ताला का उसके साथ वादा नहीं है, चाहे तो उसको बख्श दे, चाहे तो उसको अज़ाब दे। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह करे कि इस खूबसूरत हदीस को सुनने के बाद 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने की हम नियत भी कर लें, पक्का इरादा कर लें और नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक वक्त में 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز نہیں ہے. اس پر دلیل نص قطعی ہے. ان قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے. لہٰذا اس نص قطعی کے تحت ایک وقت میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز. ایسا درست نہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی یا رکوع کے بعد؟ اس سے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف دلیل کے ساتھ بیان کریں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف ہے کہ وطر میں دعائے قنوت رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جائے گی، اور اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت سنن نسائی کی صحیح درجے کی حدیث مبارکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. جناب میرے آقا جب وطر میں دعائے قنوت پڑھتے تو رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. فقہ حنفی پر عمل کرنے والوں کے لیے ماشاءاللہ عمل تو کر رہے ہیں. اب دلائل بھی جان لیجئے کہ کن حدیثوں یا کن قرآن پاک کی آیات کے ذریعے امام اعظم نے سبحان اللہ اپنا موقف لیا اور اس دلیل پر یہ فتاوے جاری فرمائے اور آج کروڑوں حنفی اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کریم امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل مل کر نعت خوانی بھی کریں گے، نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے انشاءاللہ. سید صاحب انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے اور آج کے نیک اعمال کا جائزہ لیجئے. اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھا، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھر میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلف رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، دینی کاموں پر وقت صرف کیا، دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین اب نعت شریف میں سب شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے آقا جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے کل ایک کال آئی تھی اسی کلام کے اور اسی طرز کے حوالے سے، اس کے پیچھے وہ ہمارے ساتھ تھے بغداد شریف میں جنہوں نے کال کی تھی۔ اب یہ واقعہ یوں ہوا کہ کچھ دنوں پہلے میں مرکز الاولیاء لاہور گیا اور وہاں اجتماع کے بعد ملاقات تھی، تو ملاقات کے دوران ایک نعت خواہ اسلامی بھائی نے یہ کلام پڑھا اور وہ کلام ایسا ماشاءاللہ اسی طرز میں تھا کہ پڑھتے پڑھتے کافی لوگوں پر رکت طاری ہو گئی اور کافی دیر تک تکرار ہوتی رہی اس کلام کی۔ اس کلام کے بعد جو ہے میں داتا حضور حاضر ہوا، وہ نعت خواہ اسلامی کو ہم نے وہاں بلا دیا، داتا حضور پہ پھر ہم نے جا کے یہ کلام پڑھا اور میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک اس کلام کی تکرار ہوتی رہی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی کے اگلے دن مجھے بغداد شریف جانا تھا، ہم بغداد شریف پہنچے تو نجف شریف جاتے ہوئے بس میں یہ کلام شروع ہو گیا تو سارا راستہ اسی کلام کی تکرار رہی۔ پھر غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تو وہاں کچھ ممالک کے نعت خواہ بیٹھے تھے، مجھے ان کے پاس جانے کا موقع ملا تو اتفاقاً وہاں بھی یہ نعت شروع ہو گئی، تو وہاں بھی یہ تکرار رہی۔ تو اس کے بعد میں وہاں سے پھر یورپ چلا گیا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک دن میں پھر موبائل، کیونکہ مجھے اب وہ کچھ طرز لگ جاتی ہے، کچھ بات کے اندر کنیکٹ ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے میں نے ایک دن میں 12 بار یہ نعت سنی ہوگی، سفر میں سنتا رہا، گاڑی میں سنتا رہا، جہاز میں سنتا رہا۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کے اشعار لکھے ہیں اور پھر یہ جو اشعار ہے نا اور یہ جو طرز ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ دل کو کہیں کنیکٹ کر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی گم ہو جائے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا پیارا ذکر ہے، بڑا پیارا انداز ہے، نبی پاک سے بڑی پیاری التجائیں ہیں، تو ہم سبھی تو چاہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کی نگاہ بھی پڑ جائے، ہماری کشتی بھی کنارے لگ جائے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں، کریم کے در سے قطرہ نہیں بلکہ دریا مل جائے۔ تو سب کچھ ہے اس کلام میں، سب مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں بھی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ پڑھوں گا، کیونکہ وہ اس طرز کو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا مزید سیٹ کر دوں کہ جس طرح ہم پڑھ رہے تھے تو انشاءاللہ اسی ہم بھی اس تصور میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے دھیرج میں وہ ان کے نثار کوئی کیسے دھیرج میں ہو جب کا کمال دیکھیں، پیارے آقا جب یاد آ جاتے ہیں نا، انسان کتنے ہی غم میں کیوں نہ ہو، کتنی رنج میں، بلکہ کتنی ٹینشن میں کیوں نہ ہو،
जब प्यारे आका की याद आ जाती है तो सारे गम बंदा भूल जाता है। बताओ याद का आलम यह है तो दीदार का आलम क्या होगा, नबी पाक के करम का आलम क्या होगा। अरे उन्हें याद कर लो तो गम दूर हो जाते हैं, जब वो निगाह फरमाएंगे तो फिर गम खुशियों में क्यों ना बदल जाएंगे। अपने गमों को याद करें ना और आका से अर्ज करे हुजूर मैं गमगीन हूँ और आपका जिक्र कर रहा हूँ, और आपके जिक्र की बरकत यह है कि जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे समझो यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। जब याद आ गए हैं सब भुला दी, हम सभी राग तस्कीर में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। उनके सारा कोई कैसे धीरज में हो जब याद आ गए हैं सब भुला दिए। मेरे आका जब याद जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। गुनाहगार भी जब लुत्फ आपका होगा तो किया बगैर किया बेकिया किया होगा। किसी के पाँव की बेड़ी काटते होंगे कोई असीर गम उनको पुकारता होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा हमारा बिगड़ा हुआ बन गया होगा। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए छोड़ी लश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए। मेरे करीम
हुजूर देते हैं दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं मेरे करीब से बदला किसी ने मांगा मेरे करीब से मेरे करीब से बदला किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर बे बहा दिए हैं मैं फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे अब तो अली के दर पर अब तो अली के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं अब तो अली के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं अब तो अली के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर से होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर से होगा रो रो के मुस्तफा ने रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं जिस राह चल गए हैं पूछे बसा दिए हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर से होगा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर से होगा रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं और जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जब आ गई है जोशे जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं मदनी ने जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं जलते बुझा
चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं मेरे करीम से पकड़ा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं तुरबे बहा दिए हैं भुला से इतना कह दो प्यारे सुवारी रो मुश्किल में है बराती पूरे खार पा दिए हैं भूल के सुख की शादी तुमको रज़ा भूल के सुख की शादी भूल के सुख की शादी भूल के सुख की शादी तुमको रज़ा मुसल्लम जी सांस आ गए हो जी सांस आ गए हो सीसे बिठा दिए बाकी रज़ा की गोगी माला रज़ा जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा है जिस समत आ गए हो सीसे बिठा दिए हैं उनकी महक में दिल के गुंजे हिला दिए हैं मेरे आका जिस चाह चल गए हैं ऊंचे बसा दे बसा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है आला हज़रत की क्या कमाल का कलाम लिखा है वैसे तो हर शेर ही मोतियों की मानिंद है मगर ये जो शेर है ना मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा दुनिया में किसी से मांगते हैं ना अव्वल तो अल्लाह करे कभी नौबत ना आए लेकिन किसी को प्रॉब्लम पड़ती है कि यार मैं मुश्किल में हूँ मिसाल के तौर पे कर्जा चाहिए या मदद चाहिए 1 लाख रुपए चाहिए अगला कहता है भाई 5,000 दूंगा अरे भाई 1 लाख की जरूरत है बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार में बात बनती है मांगा कितना और मिला कितना और आला हज़रत कहते हैं नबी पाक से कतरा मांगो तो दरिया अता फरमाते हैं और सिर्फ दरिया नहीं दुर बेबहा यहाँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दुर कहते हैं ये फारसी का लफ्ज है मोती को यानी बेबहा बेश कीमत मोती मांगा कतरा था कतरे के बदले दरिया भी मिलता है और मोती भी मिलते हैं करीम है ना सुभान अल्लाह तो अल्लाह करीम नबी पाक के इन अताओं से हमें भी हिस्सा नसीब फरमाए और इसी तरह प्यारे आका के गुन गाने वालों में शामिल फरमाए ज़हनी आज़माइश सिलसिला जारी है नाज़रीन आपकी कॉल्स कुछ सिलसिले में शामिल करते हैं तारीख कबूला शरीफ से गुजार माशा अल्लाह ज़हनी आज़माइश का सिलसिला अपनी बरकत बता रहा है माशा अल्लाह और ये थी कि देखने वाले तमाम इस्लामी भाइयों से इल्तिजा थी कि कम से कम एक इस्लामी भाई को भरपूर अंदाज के साथ दावत दे ताकि मज़ीद इल्म दीन सीखने में सबको आसानी से नेकी की दावत पहुँचे जज़ाकल्लाहु खैरा दुआ इल्तिजा है बहुत शुक्रिया बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि मदनी चैनल देखने की दावत इन सिलसिलों को देखने की दावत भी नेकी की दावत है इंशाल्लाह इसका भी अजर मिलेगा अगली कॉल दीजिए मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ माशाल्लाह से ज़हनी आज़माई सीज़न 17 सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है अब्दुल लतीफ़ भाई आपसे ये सवाल है कि आपने इस बार तर्ज वाला सेगमेंट क्यों नहीं रखा प्लीज़ इसको भी शामिल करें हमें बहुत प्यारा सेगमेंट ये अच्छा लगता था ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है दिल को भी आराम हो ही जाएगा अभी तो शुरू हुआ है आगे जाके इंशाल्लाह ये सेगमेंट शामिल होगा आप देखते हैं हमारे ज़हनी आज़माइश के सेगमेंट बदलते रहते हैं तो इंशाल्लाह हमने इसको रखा हुआ है
वक्त मुनासिब पर आप देखेंगे इंशाल्लाह उसको। नाज़रीन, हमने आपको हदीस पाक कल बताई थी जिसपे माशाल्लाह मुख्तलिफ आशिकान रसूल ने, बच्चों ने प्यारी प्यारी वीडियोज़ हमें बनाकर भेजी है। बताया गया बहुत सारी वीडियोज़ आई हैं, तो कुछ वीडियोज़ तो हम इंशाल्लाह यहाँ लगा देंगे और हमारा नीयत है कि सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह जो अब्दुल हबीब अत्तारी का व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर लगा दिया करेंगे, ताकि अगर जिन्होंने बाकी भी देखनी है तो वहाँ देख सकेंगे। आइए, वक्त हुआ है आपको आज की हदीस जो कल बयान हुई थी उसकी वीडियो आप देखेंगे और फिर इंशाल्लाह मैं आज की हदीस भी बयान कर दूंगा, जिसकी वीडियो आपने कल दोपहर 3 बजे से पहले हमें भेज देनी है, ताकि इंशाल्लाह एडिट करके उसमें से सेलेक्टेड जो सही वीडियोस बनी होंगी, वीडियो बनाते वक्त ख्याल रखें कि ऑडियो ठीक हो, लाइट ठीक हो, सही तरीके से कैमरा हो। हम मोबाइल से बना लें बेशक, लेकिन अच्छे अंदाज से बनाएं ताकि हम उसको चैनल पर दिखा सकें। आइए वीडियोज़ दिखाते हैं। अब्दुल हबीब अंकल, सबसे पहले तो मैं आपको ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना नबी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, अब मेरे बाद ना ही कोई रसूल है या ना ही कोई नबी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक रिसालत और नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मेरे बाद ना कोई रसूल होगा और ना कोई नबी। जी, कोशिश करें कि इन वीडियोस को और बेहतर करके बुलंद आवाज़ से बोलें ताकि हम आपकी वीडियोस को अच्छे अंदाज से चला सकें। नीयत ये है कि हदीसें याद हों और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन फैले, शौक़ पैदा हो। आज की हदीस क्या है स्क्रीन पर आप देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। अब इससे मुराद क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ना कोई नबी पैदा होगा और ना किसी नबी की और मस्जिद बनेगी, क्योंकि नबी ने आना नहीं है तो मस्जिद नबवी नबी की मस्जिद आखिरी है। बहरहाल अल्लाह के घर तो पूरी दुनिया में बनेंगे, लेकिन ये कितनी प्यारी हदीस पाक है, इसको याद कीजिए और इसको एक बार फिर दिखा दें स्क्रीन पर। जिन्होंने तस्वीर लेनी है वो तस्वीर ले लें ताकि इसको पढ़कर अच्छे अंदाज से वीडियो बनाकर हमें भेजें। इंशाअल्लाह कल अल्लाह ने चाहा तो इस वीडियो को भी, इनमें से सेलेक्टेड वीडियो को जो अच्छे अंदाज से बनी होंगी, अब उसको चलाएंगे। नाज़रीन, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम ने आज आगे जाना है और कौन सी टीम अगले मुकाबले के लिए, पीछे रह जाने वाली टीमों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगी। जी जनाब। सिर्फ 1 नंबर का फर्क है। गुजरांवाला वाले 31 नंबर पर हैं और पिंडी भटिया वाले 30 नंबर पर हैं। आइए सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। कुरान के जरिए बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें हमें सीखने को मिलेंगी। कुछ कुरानी वाकयात का जिक्र भी होगा। सवाल करेंगे गुजरांवाला वालों से, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, क्या उनका शुक्र अदा करने की तरगीब कुरान में दी गई है? और इस हवाले से एक आयत भी सुनाएं, उसका तर्जुमा भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 14 सूरह नहल। क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़िल कुरान मजीद फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम मुमिनीन। और खाओ पियो उसमें से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, पाकीज़ा और हलाल, और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह की दी हुई रोजी हलाल पाकीज़ा खाओ और अल्लाह की नेमत का शुक्र करो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इंसान को जमीन पर किस अंदाज में चलना चाहिए, इससे मुताल्लिक कुरान की क्या तालीमात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। तर्जुमा, और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं।
اور रहमान के वो बंदे जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं। ज़मीन पर चलने के अहकाम भी कुरान ने बयान किए हैं, पैर पटक पटक कर तकब्बुर वाले अंदाज में और जनाब आवारा लोगों के अंदाज में चलना, ये इस्लाम का तरीका नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब थोड़ा सा ट्विस्टेड है मामला, आपको तस्वीरें दिखाई जाएंगी और इन तस्वीरों से आपने कुरान का ये कौन सा वाकया है, कौन से पारे में है, कौन सी सूरत में है, ये बताना है। कुछ दस्तरखान नजर आ रहा है, कुछ आसमान नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की कौम के लिए जो दस्तरखान उतरा उसका जिक्र है और सूरह माइदा है। पारा नंबर 6। मेरे पास 7 लिखा है लेकिन 6 से शुरू होती है सूरह माइदा। अच्छा जी जनाब, ये सूरह माइदा में है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम ने ये नाफरमानी की। जनाब ये बनी इसराइल के लोग कितने कमाल की, यूँ देखा जाए तो इन पर नेमत हुई थी कि आसमानी दस्तरखान उतरा था, मनो सलवा होता था, मगर इन लोगों ने उस खाने का ज़ख़ीरा करना शुरू किया, अल्लाह के नबी की नाफरमानी की। आपको ये भी जानकर हैरत होगी कि जब ये दस्तरखान उतरा था ना, इससे पहले खाना ख़राब नहीं होता था, मगर इस कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद इस खाने को ज़ख़ीरा किया और फिर उन पर अज़ाब नाजिल हुआ। नाज़रीन, ये कुरानी वाक़यात कमाल के वाक़यात हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत सबक है इसके अंदर। मैंने कल भी बताया था, एक बड़ी प्यारी किताब है कुरान पाक के वाक़यात पर मुश्तमिल, मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं। अजाइबुल कुरान, गराइबुल कुरान, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, दीगर ज़बानों में भी है। और आप अगर इसके मुतालिक ये वाक़यात सुनना चाहते हैं मदनी चैनल के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए, तो हमारे 2 प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, पैगाम कुरान या एक किस्सा है कुरान से, जिसके ज़रिए कुरानी वाक़यात और उसके बारे में मालूमात आप लेंगे। अब बारी है पिंडी भटिया वालों की, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे उनको। कव्वा भी है और कब्र भी है, इससे क्या आपने पहचानना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुरान पाक के उस वाक़े की तरफ इशारा है जब कव्वे ने सबसे पहले मुर्दे को दफन करना सिखाया था, और ये पारा नंबर 6 सूरह माइदा के अंदर मौजूद है। जनाब सेम सूरत है, एक ही सूरत में कई कई वाक़यात होते हैं। पारा नंबर 6 सूरह माइदा में, अब जब काबील ने हज़रत हाबील को कत्ल कर दिया और अब दफन, क्योंकि पहली मौत हुई थी दुनिया में, तो करना क्या है मैयत के साथ उसे पता नहीं था। वो कांधे पर लेकर अपने भाई की लाश को ढूंढता रहा। तो अब उसको सिखाया कैसे गया कि एक कव्वे और दूसरे कव्वे के दरमियान कोई मामला हुआ, एक कव्वा मर गया तो दूसरे ने ज़मीन खोद कर उसमें उसकी लाश को दफन किया, और उसके ज़रिए गोया बताया गया कि मैयत को इस तरह दफन किया जाता है। बहरहाल बड़ा ही एक तरह से इबरत अंगेज वाक़या है और इस वाक़े से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ज़रूर पढ़ें कुरान मजीद में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसला करना है आखिरी सेगमेंट ने, 1 नंबर ही का फ़र्क है। यूसुफ बाबू मुझे बार बार मारिफतुल कुरान दिखा रहे हैं कि इस बार किसको देना है, तो क्यों ना यूसुफ शाह साहब को भी वही शेर सुना दें, ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अभी फैसला करते हैं इंशाअल्लाह। क्या आज भी हाज़रीन में दे दिया जाए? क्या कहते हैं हाज़रीन? क्या बात है, चले गौर करते हैं इंशाअल्लाह। जनाब दोनों टीमों से आखिरी सेगमेंट होगा जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। एक भाई यहाँ आ जाए और एक भाई यहाँ आ जाए। गुजरांवाला वाले पिंडी भटिया आ जाएं और पिंडी भटिया वाले की स्लैम बैग गुजरांवाला की टीम की तरफ आ जाएं, ताकि सफर अकेले हो, मशवरा बिल्कुल ना हो। आप सबसे 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, आपने सही कहना है या गलत कहना है। हर सवाल के जवाब पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अब बारी है मुश्तबा भाई की। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। सही। फैजान ऑनलाइन एकेडमी दावत इस्लामी का एक शोबा है। सही। कुरान पाक में हजरत आयशा का नाम आया है। गलत। हाथी के नाम पर कुरान पाक की एक भी सूरत नहीं है। गलत। आप अलैहिस्सलाम ने जबल उहद पर चांद के 2 टुकड़े फरमाए। गलत। जनाब देखना यह है मुश्तबा ने क्या किया है। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अब बात है जनाब, अब बारी महद भाई की है, पिंडी बटिया से ताल्लुक है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला का मजार शरीफ मदीने में है। गलत। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं। गलत। कसीदा बुर्दा हजरत हसन का मशहूर नातिया दीवान है। गलत। मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब आला हजरत के बड़े बेटे हैं। गलत। मोहम्मद में 6 हरूफ हैं। गलत। सारे ही गलत कह रहे हो, मगर सही बात यह है कि सारे ही सही कहें। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए।
अली रजा भाई हैं गुजरांवाला वालों से। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। गलत। सूरह असर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। गलत। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी का मौजज़ा अता किया गया था। सही। छींक आने के बाद यरहमुकल्लाह पढ़ना चाहिए। सही। तशहुद पढ़ना नमाज के फराइज में से है। सही। अल्लाह अकबर। कई गलतियां कर दी हैं अली रजा भाई ने जनाब, 3 गलतियां कर दी हैं। अल्लाह अकबर। अब बारी है जनाब पिंडी बटिया वालों की। रिशाइल बिसाम, बड़ा मुश्किल है नाम। इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सही। फैजाने सिद्दीक़ अकबर अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है। सही। हजरत फातिमा नबी पाक अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी साहबजादी हैं। गलत। एक दिन रोजा रखने और एक दिन ना रखने को सौमे दाऊदी कहते हैं। सही। सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। सही। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। देखना यह है, एक गलती कर गए हैं बिसाम जनाब। अब मामला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। जो गुजरांवाला 1 नंबर से आगे था, अब पिंडी भटिया 1 नंबर से आगे है। अब आखिरी 2 इस्लामी भाई हैं जिनके कांधों पर पूरी जिम्मेदारी है जनाब। अब बारी है असद की, और असद भाई मौजूद हैं यहाँ पर। माशाल्लाह ताल्लुक इनका इदारतुल मुस्तफा से है। पूरी गुजरांवाला टीम की जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है। सुननुल कुबरा हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब है। सही। बहुत पहाड़ मक्के में वाक़े है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम मुस्लिम का नाम है। गलत। हुरूफे कलकला 5 नहीं है। सही। शाह अब्दुल लतीफ बिजाई का मजार हाला सिंध में है। गलत। एक गलती कर गए हैं, हुरूफे कलकला 5 ही हैं और आपने कहा, मैंने कहा नहीं है तो आपने इसको गलत कह दिया। अब जनाब इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिंडी बटिया वालों ने 3 सही जवाब दिए तो मुकाबला हो जाएगा बराबर, और 3 से ज्यादा सही जवाब दे दिए तो पिंडी भटिया वाले मुकाबला जीत जाएंगे। मैंने कहा था इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। पहले सेगमेंट में ही पिंडी भटिया वाले पीछे रह गए थे और अब जीतने का शानदार मौका है पिंडी भटिया वालों के पास। और इनकी तरफ से तलहा जाहिद हैं, बड़े ज़हीन तालिब इल्म में ये लगते हैं। बहरहाल इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। गलत। सिरातुल मनाजी इमाम सुयूती की तसनीफ है। गलत। हजरत अस्वद को बोसा देना इस्लाम कहलाता है। गलत। सबसे पहले कश्ती हजरत आदम ने बनाई। गलत। सूरह यूसुफ 20वें पारे में है। गलत। गलती तो की है आपने, क्योंकि हजरत अस्वद को बोसा देना ही इस्लाम कहलाता है, मगर एक गलती की है जिसकी वजह से आज पिंडी बटिया वाले जीत गए हैं। हाय हाय हाय, किस तरह गुजरांवाला वाले पीछे रहे और पिंडी बटिया वाले आगे बढ़ गए। हिम्मत पे रहिए, अभी तो एक मुकाबला बाकी है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है जनाब। दोनों टीमों के इस्लाम भाई आगे तशरीफ लाएंगे और फिर इंशाअल्लाह कुरानदाजी भी होगी। नाजरीन, एक सवाल आपसे पूछा गया था, अभी उसका जवाब इंशाअल्लाह और उसकी कुरानदाजी, क्या हमारी क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी आ गई है? आइए पहले देखते हैं आज आपसे सिलसिले के शुरू में जो कुरानदाजी की गई उसका जवाब क्या है। आपसे सवाल किया गया, उसके जवाब और उसका नतीजा क्या है। सबसे पहले खेती बाड़ी किसने की? जवाब दुरुस्त है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कई लोगों ने जवाब दिया होगा, वो 5 आईडीज दिखाइए जिनको तोहफा जा रहा है जनाब। 5 आईडीज नोट कर लीजिए और इंशाअल्लाह आपको ये तोहफा भिजवाया जाएगा। हमारे माशाअल्लाह तलहा जाहिद, हाँ तलहा जाहिद भाई को आज इंशाअल्लाह बेस्ट परफॉर्मर का हम तोहफा दे रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाक खैर दे। वैसे सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं माशाअल्लाह। और अब बारी है कल मुकाबला किसका किसके दरमियान है जो आप देख सकेंगे। आइए देखते हैं। इंशाअल्लाह भावलपुर का मुकाबला शिकारपुर के साथ है। दोनों पूर हैं मगर बहुत दूर हैं, एक पंजाब के हैं और एक सिंध के हैं, भावलपुर और दूसरे शिकारपुर। अब वक्त हुआ है यहाँ पर कुरानदाजी हम करेंगे। हमारे पास मारफतुल कुरान 3 किताबों का बड़ा प्यारा सेट है। जरा दिखाइए, मैं नाजरीन को भी दिखाऊं ताकि वो भी खरीदें। इसमें ऐसा क्या है, 7,500 रुपए इसकी प्राइस है, लेकिन आप जरा देखें क्या कमाल की चीज़ है। जरा कैमरा मैन इसको जूम कीजिए, बताते हैं हम इनको कि लफ्ज ब लफ्ज एक एक कुरान पाक के लफ्ज का तर्जमा आप पढ़ सकेंगे। कलर्स इसलिए हैं कि कलर्स के टॉपिक नीचे लिखे हुए हैं और बहुत कुछ है। आप अगर इसको रोज के 2-3 सफ़ात भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैं कुरान समझ के पढ़ रहा हूँ। तो ये तो सच्ची बात है, हर घर में होना चाहिए, मदरसों में होना चाहिए, लाइब्रेरी में होना चाहिए। मकतबतुल मदीना से कैसे किताबें मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देखें और अपनी किताबें बुक कीजिए। चले जनाब, लाइए आज देखते हैं कि ये किसको हम दे रहे हैं कुरान। आज भी चले हाजरीन में से दे देते हैं इंशाअल्लाह। चले जनाब, पहले सवाल कर लेते हैं जो कल आपने जवाब देना है।
اور وہ سوال یہ ہے کہ ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے آ کر ہر دن کے حساب سے کعبہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا پیاری عادت تھی کہ جتنے دن باہر رہے اتنے طواف کرنے ہیں, اتنی 2 رکعت نفل طواف کی پڑھنی ہے. تو میرا خیال یہ مکے والوں کے لیے تو بڑا اچھا میسج ہے, جو مکے میں رہتے ہوئے بھی طواف نہیں کرتے, تو وہاں بھی انہیں طواف کرتے رہنا چاہیے. ان صحابی رسول کا نام کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ جنوری 2018 میں سے تلاش کیجئے, آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جو پہلا سوال تھا اس کا جواب ابھی تک یہاں پہنچا نہیں ہے, پہنچائیں گے تو قرآن اندازی ہوگی. اور اب باری ہے یہ بچوں کے جو ٹوکنز ہیں ان کی قرآن اندازی ہے 4761. 4761 اگر کوئی مدنی منع ہے تو آ جائیں. 4761 چلیں, آ جائیں گے چلیں. اب باری ہے معرفت القرآن, انشاءاللہ دیا جائے گا تحفے میں, اور یہ جا رہا ہے 4705. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب, کیا بات ہے مدینے کی. تو انشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کریں گے, اور آئیے مل کر اب انشاءاللہ ٹوکن دکھا دیں سی یہ صاحب.